Good evening. Heartily welcome to all the viewers on 10 News Network. 10 News Network, we have got a very special guest with us, CMA Balvinder Singh Ji, Honorable President, the Institute of Cost Accountant of India, statutory body under an Act of Parliament. I would like to introduce CMA Balvinder Singh Ji has also been an earlier Vice President in 2018-2019 tenure. He has been a council member, chairman, Cost Accounting Standards Board, chairman, Committee on Public Finance and Government, chairman, Board of Training and Accounting Technicians, exclusive member, South Asian Federation of Accountants, apex body of Global SAARC nations. Welcome, sir. Welcome. And today is Chartered Accountant Day. Kindly accept the wishes heartiest wishes on CA Day, and thank you for your time. Thank you so much for joining with us today. 10 News also would like to extend our heartfelt thanks to esteemed Professor Dr. Alka Agarwal ji, MCom, MPhil, PhD, Director, Mewar Institute and Mewar Group of Institutions. Thank you so much, ma'am, for your time and joining us for your valuable time with 10 News Network. Thank you. 10 News Network extend our heartfelt thanks to eminent panelist and moderator of our today's event, Advocate Shanky Jain Sahab, fight for judicial reforms and esteemed social worker. Thank you so much, Shanky Jain ji. Thank you so much for giving us. Thank you. So we will start with the proceedings, the webinar with our CMA Balvinder Singh Sahab, उनकी प्रस्तुति के साथ। और सबसे पहले 10 न्यूज के माध्यम से जो इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, सर को भी पता है, उसमें सर के क्या विचार हैं, सबसे पहले हम सबसे ही जानना। मोस्ट वेलकम सर। जी, यस सर। COVID-19 and today's topic is on financial and cost management. You have just informed this webinar is on that financial. Due to COVID, we have seen that the large number of factories have been closed for 2.5 months, and slowly the things are coming back to normal. But if we see the reality, during that period, large number of workers have gone home. Large number of employees have been in a number of industries have been taken out of the entries. Being a closed entity for 2.5 months, except the essential commodities. Slowly, when the things are coming back to the normal, the workers have to come back, the laborers which have gone to the state have to come back. The industry is facing certain troubles, the cost is increasing on account of labor. We have seen when in the initial lockdown of 14 days and subsequent again of 14 days or something, these periods, smaller periods, lockdown 1, lockdown 2 and so, even the transportation was closed. From that point of time only, the transportation cost started increasing, because when the things started coming normal, or when the lockdown, essential commodities are allowed, everybody was not ready to operate. People were not available, drivers were not available. So things are coming slowly normal, but the prices are increasing for the transportation also. The transportation prices increases means the raw materials are going to increase. Your finished goods are going to increase. There are certain challenges we have to address from our institute and from the government side also. Yes, sir. Great, sir. We would like to begin with ma'am, Dr. Alka Agarwal. Ma'am is an educationist. She has been the director of Mewar Group of Institutions. मैम, मेवार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को आप पूरा गाइड करते हैं, आप उनको पूरा संचालन करते हैं. हाउ द थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट एंड हाउ द थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक in the field of education, especially in the national level, and then we would like to hear your views as well as pertaining to the Mewar Group of Institutions. Namaskar. I am the director of Mewar Institute. और जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं लुक आफ्टर करती हूँ. और अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है कोविड-19 का, उस समय पर एजुकेशन जो है वो कितना पिछड़ गई है पिछले मार्च से लेकर. और वो ऐसा एक टाइम था जबकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का टाइम था, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस का टाइम था, स्कूल
और अदर कॉलेजेस में एडमिशन्स का टाइम था, और उसी टाइम पर ये पेंडेमिक हमारे सामने आया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ। और लॉकडाउन होने की वजह से ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी एकदम हेल्ड अप हो गई हैं। और लेकिन फिर भी कॉलेजेस ने और इंस्टीट्यूशंस ने बहुत कोशिश करी कि हम अपने एक लेवल पर आकर इन चीज़ों को सही तरीके से चला सकें, और इसके लिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन का एक रास्ता अपनाया। और टीचर्स ने, फैकल्टीज ने, सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके जितने भी कोर्स हमारे बाकी थे, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस यहाँ पर होते हैं, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टाइम मई और जून होता है। और मई और जून से पहले मार्च से फरवरी से हमारा नया सेमेस्टर शुरू हुआ, और नए सेमेस्टर की पढ़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि इस तरीके की एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई। तो हमें अकस्मात ही बंद करना पड़ा अपना इंस्टीट्यूट। लेकिन जितने कोर्सेज भी बाकी थे उन सब कोर्सेज को हमने ऑनलाइन वेबिनार्स करके, ऑनलाइन लेक्चर्स करके, सभी स्टूडेंट्स को उसमें जोड़कर इनको कंप्लीट कराने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम इस काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर अभी यूनिवर्सिटी कोई एग्जामिनेशन की प्रपोज डेट देती है तो वी आर फुली रेडी फॉर द एग्जामिनेशंस। किसी भी समय हमसे एग्जामिनेशन लिए जाएं तो हमारे बच्चे सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अपने सेमेस्टर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे चुके हैं, अपने यूनिट टेस्ट दे चुके हैं। उनके बेसिस पर इंस्टीट्यूशन ने अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अल्टरनेट हमने ढूंढकर और उस पर चलकर हमने अपनी एजुकेशन को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वाकई ये एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है, जिसमें कि एजुकेशन जो है वो हमें लगता है कि इस पीरियड में जो काम एक बहुत सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए था वो वाकई काफ़ी हद तक पीछे रह गया है। थैंक यू मैम। आप एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं और आप पूरा HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी पूरा ताल्लुक रखती हैं। तो अभी जो उनकी पॉलिसीज बनी है नेशनल एजुकेशन को लेके, आप उनसे किस हद तक सहमत हैं, और आप एज ए डायरेक्टर उसमें क्या सरकार को अपनी तरफ से कोई सजेशंस और देना चाहेंगी इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, देखिए, एजुकेशनल अभी तो उन्होंने सारे एग्जाम्स वगैरह के लिए तो मना कर ही दिया है कि कोई भी एग्ज़ाम अभी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं कराएंगे। पहले शुरू में ऐसा हुआ था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं कराएंगे और उनको प्रमोशन ऐसे ही दे दिया जाएगा एवरेज मार्किंग के बेसिस पर। लेकिन अब मेरे ख्याल से जैसी सिचुएशन हो रही है उसको देखते हुए HRD मिनिस्ट्री ने, HRD मिनिस्टर जी ने हमारे ये अनाउंस किया है कि अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे और सभी को एवरेज मार्क्स देकर आगे की क्लास में चढ़ा दिया जाएगा। और एक ऑप्शन उन्होंने और दिया है कि अगर कोई बच्चा, उसको ये सेटिस्फेक्शन ना हो कि मेरे को एवरेज मार्किंग से आगे चढ़ाया गया है, तो उसको एक ऑप्शन आगे दिया जाएगा कि वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए भी एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत सही चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी हो जाएंगे, उसके बेस पर बच्चों को जो भी कोर्स आगे अडॉप्ट करना है 12th के रिजल्ट के बेसिस पर, वो उनको अडॉप्ट कर लेगा। और फिर अगर आगे उसको एग्ज़ाम से इम्प्रूवमेंट मिल भी जाता है तो भी उसका एक साल तो उसमें ख़राब होगा ही। बाकी जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ HRD मिनिस्ट्री बनाती है वो काफ़ी हद तक एजुकेशनिस्ट से डिस्कशन करके ही बनाती है। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें अपनी लाइन पर हैं, ठीक चल रही हैं, और समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे सजेशन देकर और आपस में मिलजुल कर इन बातों को और ठीक कर लिया जाता है। जी मैम, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अलका अग्रवाल जी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, एमिनेंट पैनलिस्ट और आज के मॉडरेटर भी हैं, एडवोकेट शंकी जैन साहब, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, एस्टीम सोशल वर्कर, 30,000 कोर्ट में अपना पूरा सब संचालन भी करते हैं। एडवोकेट साहब, इस समय कोविड-19 के दौर पे आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा मशक्कत भी हो रही होगी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हो रहे होंगे। 10 न्यूज़ के माध्यम से जानना चाहेंगे और किस तरह से आप इन सब चीजों को ठीक कर पा रहे हैं सुचारू रूप से।
जी जैन साहब। सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ जी, कैन यू रिपीट द हम सेम? आपको सुन पा रहे हैं, जी दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 सर, जैसे कि आपने बताया कोविड-19 का, जितना हम देख पा रहे हैं कि कोविड-19 में हमें क्या-क्या मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, वेबिनार्स के थ्रू हम सारे कोर्ट अटेंड कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें हमें प्रिकॉशंस, हेल्थ प्रिकॉशंस के साथ-साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस में लेने के साथ-साथ हमें अपने क्लाइंट्स के सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। लीगल कंसर्न हमारा रहता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लीगल एड सर्विस के साथ-साथ लीगल रिलीफ भी दिलाते रहें। हमारे कोर्ट्स में यही चीज़ देखी जा रही है कि अभी कोविड-19 के जो केसेज़ आ रहे हैं, डे बाय डे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ-साथ हाई कोर्ट्स में भी ये केसेज़ कोविड-19 के, कोरोना के वायरस के पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। उनको सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वेबिनार्स के थ्रू अपने सीनियर्स से गाइडेंस लेने के बाद में हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना भी अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दिला सकें लीगल वे में, उतना हम वेबिनार्स के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, इसमें जितना भी हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हमारी इंटेंशन रहेगी कि हम इसी कार्य पर आगे चलते रहें। जी जी जैन साहब, आज आप शो के मॉडरेटर भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सीएमए साहब, प्रेसिडेंट साहब के साथ आज आप कुछ सवाल जवाब भी करें और शो को आगे संचालित। सबसे पहले मैं सीएमए श्री बलविंदर सिंह साहब, प्रेसिडेंट आईसीआईजी का स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और आप सीए भी हैं और सीएमए भी हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। सीए डे है आज और आपका जीएसटी डे भी है आज। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट कोस्ट एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द कोस्ट एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीएमए इंस्टीट्यूट का हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में क्या-क्या योगदान रहा है? आप ये योगदान कोविड के सिलसिले में बात कर रहे होंगे, आज का कार्यक्रम कोविड-19 बिल्कुल 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 सर, क्या सपोर्ट रहा है? हम इंडस्ट्री को हम शुरुआत से मदद करते रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाली जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर प्रॉपरली एक सिस्टम के तरीके से निकाली जाए तो आप एक प्रोडक्ट को एक प्रॉपर प्राइसिंग पे दे पाएंगे। अगर कॉस्ट निकालने में गड़बड़ हुई तो आगे सेल प्राइस प्रॉपर नहीं होगा, कंपटीशन में नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात, जब आप कॉस्ट निकाल लेंगे तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जैसे मटेरियल की क्या कॉस्ट है, लेबर की क्या कॉस्ट है, इस तरह के अलग अलग खर्चों की डिटेल सामने आती है। जब सामने आती है डिटेल तो उसको पर यूनिट डिटेल सामने आएगी, पूरी कंपनी की भी आएगी, एक फैक्ट्री की भी आएगी, अलग अलग जितनी फैक्ट्रीज है सबकी कॉस्ट अलग अलग मिलती है। जब कॉस्ट अलग अलग फैक्ट्रीज की आपके अलग अलग समय की कंपेयर की जाती है तो एक सामने ये भी निकल के आता है हमारी जो संस्था द्वारा जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि इसको कॉस्ट को कंट्रोल किया कैसे किया जाए। दूसरा फंडामेंटल मैं ये कहूँगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने मशीन लगा ली, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लेकिन एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए एक दिन में या एक साल में, वो एस्टिमेशन द्वारा हमारे द्वारा किए जाते हैं उसी, ताकि ये प्रॉपर मशीनरी को प्रॉपर यूटिलाइज की जाए। अगर आप किसी मशीन में 100 प्रोडक्ट बनने हो एक साल में और आप सिर्फ 70-80 बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली है कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा निकल के आएगी। अगर आपने सेवाई नहीं ली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की सेवा लेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर टाइम साइकिल, टाइम मूवमेंट चेक करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज बताएंगे, जिससे आप कॉस्ट को कंट्रोल करने का भी माध्यम प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ अगर कोविड के सिलसिले में, तो कोविड आने के बाद हमने पूरी इंडस्ट्री की मदद कंटिन्यूसली करते आए हैं, पहले से भी करते आए हैं, कोविड में भी। कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आया है वो आया है एमएसएमई सेक्टर पे। और एमएसएमई सेक्टर के लिए तो एमएसएमई को वापस एक प्रॉपर रास्ते में लाने के लिए कि वापस से फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाए सभी की सभी जैसे पहले चलती थी, उसके बारे में हमने 3 बार सरकार को सुझाव दिए क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। फाइनली उसमें से काफ़ी सुझाव सरकार ने माने भी हैं। हमारे कार्यक्रम में ऑनरेबल नितिन गडकरी जी भी आए थे, उन्होंने भी कई सुझाव हमारे माने और फाइनली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी सुझाव निकले, फाइनली हमारे सुझावों में इसमें काफ़ी डिसीजन हुए हैं। हमने इंडस्ट्री की मदद अपनी तरफ से करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एमएसएमई हेल्प डेस्क खोले हैं 36 बड़े बड़े शहरों में जहाँ हमारे ऑफिस हैं। हमारे जो हैं वो इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं
वापस आने के लिए क्या एक्सपेंडिचर होगा उसको असेस किया जाए, उसकी कॉस्ट रिकवरी कैसी होगी प्लानिंग की जाए, ऑप्टिमम प्रोसीजर बात कर रहा था कि वो वापस धीरे धीरे कितना सामान बनाए। अब बंद होने की वजह से कोविड-19 का जो फैक्ट्री बंद रही तो डिमांड पे भी इफेक्ट आया है, हमारे सिटीजन्स की स्पेंडिंग पावर में इफेक्ट आया है, डिमांड कम हुई है जो नॉन इसेंशियल गुड्स हैं। जैसे हम बात करें कार ऑटोमोबाइल में तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, होटल्स एंड ऑल, वो सब सेक्टर्स में वापस प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे आना है, हमारे हेल्प डेस्क सबकी वो पूरे हिंदुस्तान में मदद कर रही है। तो हमारी इस मदद में हम यही बताएंगे आपको अब इस समय कैसे ऑपरेशन दोबारा शुरू करने हैं, किस लेवल पे करने हैं, इस क्राइसिस से कैसे बाहर आना है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या नई बिजनेस मॉडल हो सकते हैं। तो हमने ये सब बातें, और जो जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इफेक्ट आया, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे इफेक्ट आया। अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ, गुड्स डिलीवरी, चाहे हम होम डिलीवरी गुड्स की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उन सब कंपनीज को या डिलीवरी कंपनीज को ज़्यादा मैन पावर की रिक्रूटमेंट करनी पड़ रही है, तो कॉस्ट बढ़ रही है वहाँ पे भी। तो इस सब का क्या ऑप्टिमम प्लानिंग हो सकती है, हमारे MSME हेल्प डेस्क इस सिलसिले में मदद कर रही है। और हमने सरकार को कुछ रिसर्च पेपर भी बना के दिए हैं, जैसे इंडस्ट्री पे कोविड-19 का क्या इफेक्ट आया, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया। MSME में बताया, हमने 3 बार सजेशन दिए थे, इसमें काफ़ी मानने भी दिए। फिर हमने इंडस्ट्री को भी डॉक्यूमेंट बना के दिया है, बोर्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब ये कोविड-19 के बाद, अब जब समय ठीक आ रहा है धीरे धीरे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये देखना है कि कंपनी पे क्या इफेक्ट आया, उसकी रिकवरी कैसे करनी है, या आगे काम कैसे करना है। तो उसमें हमने सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग से पब्लिकेशन निकालने हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग से, कि आप वो जो सजेशन है उनको देखिए, किस किस एलिमेंट में आपको कॉस्ट एलिमेंट में अंदर जाना है, उसको कैसे कैसे हमें रिस्टोर करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरे हिंदुस्तान मदद करने के लिए हमने रिसर्च डॉक्यूमेंट निकाले हैं। और रिबूटिंग इकोनॉमी पोस्ट लॉकडाउन, एडवांटेज इंडिया, जैसे हम कहा जा रहा है कि दूसरे देशों से कंपनीज इधर आएंगी, उसके बारे में भी एक रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया है। आपके विचार सुनने के बाद श्री बलविंदर सर, हम क्या ये कह सकते हैं कि CMA इंस्टीट्यूट का हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है? जैसे कि आपकी बातों से पता चला है कि आपने कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में आपने इतने काम किए हैं, और वो जो CMA इंस्टीट्यूट ने काम किए हैं, आपने काम किए हैं CMA इंस्टीट्यूट के साथ में चल के, क्या वो हमारी अर्थव्यवस्था को हमें मान लेना चाहिए कि सपोर्ट करेंगे? जी, हमारी संस्था 1944 में बनी थी। ग्रेट सर। 76 साल हो गए, और 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर सरकारी मान्यता दे दी थी। हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में आते हैं। तो स्टार्टिंग से ही 76 सालों से ये ही हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी संस्था का यही रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो जो भी हमारी रेगुलर सर्विसेज है, रेगुलर ट्रेनिंग है, हमारे कॉस्ट काउंटर जो ट्रेन है, वो भी यही है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, बचाया मीनिंग ये नहीं होता कम किया जाए, ऑप्टिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम स्पेंडिंग, और इसी तरह से मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, ये हम स्टार्टिंग से सिखाते आए हैं। और बीइंग अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो इकोनॉमी में जितने भी पहले भी डिसीजन होते आए हैं, हमने पूरा योगदान दिया है। इस सिलसिले में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आज GST डे है। हमारी संस्था पहली संस्था, अकेली संस्था है हिंदुस्तान में जिसने आज 3 वर्ष पूरे होने पे GST डे पूरे नेशनल लेवल पे मनाया। आज मैडम अपराजिता सारंगी जी MP आए थे, और वहाँ से ओडिशा कॉन्स्टिट्यूंसी से है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उधर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो चेयरमैन है, ऑल इंडिया चेयरमैन अजीत सर जी, वो भी हमारे पास आए थे आशीर्वाद देने की आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है। और ये हम 3 सालों से GST डे मना रहे हैं, 1 जुलाई का। आज 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये 3 साल मनाया गया। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा, GST डे में आज सुबह भी विचार कर रहे थे हम हमारे आदरणीय गेस्ट के सामने, कि जब GST स्टार्ट हुआ, हमारी संस्था ने तब से लेके अब तक 1200 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। इंडस्ट्री जब शिफ्ट हुई पुराने ज़माने के वैट सिस्टम से GST में, तो शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, तो क्या नए रूल आए, क्या रेगुलेशन आए, GST के आते आते ही इम्प्लीमेंट हो रहा था, तब से लेके अब तक 1200 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा, GST जब आया तो पहले साल में हमने 100 से ज़्यादा हेल्प डेस्क खोले थे पूरे इंडिया में। जैसे MSME के तो 36 हेल्प डेस्क खोले, उस समय तो हमने 100 से ज़्यादा हेल्प डेस्क खोले थे। हमारे इस समय चैप्टर पूरे इंडिया में 109 है। तो पूरे उस समय भी इंडस्ट्री की पूरी मदद की, छोटे बिजनेस में मदद की, जिसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे सेपरेट प्रोफेशनल, तो हमने पूरी हमारी संस्था ने वहाँ मदद की।
बहुत खूब सर, बहुत हम खूब, बहुत अच्छा कंटिन्यूसली सर, इकोनॉमी की में मदद करते आ रहे हैं। बहुत खूब सर। तो सर आप क्या, जितना आपने इस ड्यूरेशन में काम किया है, और लगता है कि आप डेली रूटीन के मुकाबले में भी आपने ये रिकॉर्ड ही ब्रेक किया है कि कोविड-19 अपना कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में भी आपने इतना वर्क करने के बाद में सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरा सपोर्ट किया है। तो आप ग्लोबल इकोनॉमिक 2021 को कैसे देखते हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक 2021 को क्या आप कहना चाहेंगे? आपके विचार क्या होंगे उसके ऊपर? सर ग्लोबल इकोनॉमी देखिए, आज की सिचुएशन सबके सामने बहुत क्लियर है कि कोविड की वजह से पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट आया है, ग्लोबल इकोनॉमी में पूरे एग्जैक्टली वर्ल्ड सर, में। एग्जैक्टली। तो वो जो एक गिरावट बहुत तीव्र गति से आई है, वो सीधा इमीडिएटली तो ऊपर ग्राफ नहीं आएगा, वो स्लोली एंड स्लोली जो बिजनेस की ग्रोथ के द्वारा ही आएगा। यानी कि जैसे पहले प्लानिंग की गई थी 2021 में एक वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, वैसी नहीं होगी, पर जो आज आप 1 जुलाई को देख रहे हैं उससे बहुत बेहतर होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके तौर से पता चल रहा है कि आपकी पूरी प्लानिंग, जैसे कि आपने बताया सीएमए नाम ही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आशा करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर आया जाए, 2021 ग्लोबल इकोनॉमी हमारी अच्छी रहे। जी, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता सर। सिंह साहब, एक क्वेश्चन मैं जरूर लेना चाहूंगा, जो अभी हम लोग एक क्वेश्चंस भी लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन लाइव शो है। तो एक हमारे श्रोता है, उन्होंने पूछा है, विल देयर बी ऑनलाइन एग्जाम इन सीएमए? इसके ऊपर क्या विचार है? जी, क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा कि स्टूडेंट ने पूछा होगा। ये बहुत चर्चा में हम आज की डेट में इस मामले में। हमारे जो एग्जाम्स होने थे ओरिजिनली वो जून में होने थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो हमने पहले जुलाई में पोस्टपोन कर दिए। जैसे ही हमें लगा कि ये जुलाई में लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो हमने कुछ दिन पहले इसको जुलाई से एग्जाम को शिफ्ट करके 1 सितंबर को कर दिया है। अब 1 सितंबर को क्या पोजीशन होगी? आज की डेट में सरकार ने तो ये कहा है कि 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे। तो इन केस 1 सितंबर तक सरकार ने परमिशंस दे दी पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी संस्था 109 चैप्टर हैं, हमारे एग्जाम 144 सेंटर्स में होते हैं, 144 सेंटर्स में होते पूरे हिंदुस्तान में। तो इन केस 1 सितंबर तक वो पूरे 144 सेंटर्स में कोविड की पोजीशन खराब नहीं रही, मतलब प्रॉपर सभी स्टेशन हमें तो क्लियर चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कुछ स्टेशन पे एग्जाम हो, कुछ पे ना हो। बेसिकली कोई रेड जोन ना हो, कंटेनमेंट जोन ना हो, सभी अगर क्लियर हो जाते हैं 1 सितंबर के आसपास, सरकार परमिशन दे देती है, तो हम फिजिकल एग्जाम की तरफ चलेंगे। पर हाँ, हमारी संस्था ने अल्टरनेट अरेंजमेंट के बारे में विचार और वर्किंग शुरू कर दी है। इनके सरकार से क्लियरेंसेस नहीं मिलती 1 सितंबर की ये लॉकडाउन के बारे में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलने के बारे में, तो हम ऑनलाइन के बारे में काफ़ी तीव्र गति से तैयारी कर रहे हैं। तो समय आने पर हम इसके बारे में बता पाएंगे। मे भी आप मान लीजिए लगभग 1 महीने में ये क्लियर हो जाएगा कि 1 सितंबर खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर कोई मुश्किल आई तो हम पूरी तैयारी में हैं ऑनलाइन के लिए, लेकिन एज अ सेकेंडरी ऑप्शन अब आज की डेट में तो 1 महीने में लगभग क्लैरिटी हो जाएगी क्या करने वाले हैं। अभी तक तो फिजिकल एग्जाम ही चलेगा। धन्यवाद सर। मैं लौटूंगा डॉक्टर अलका अग्रवाल जी के पास। प्रोफेसर अग्रवाल जी, ये शो इस समय यूएस में भी देखा जाता है और हमारे काफी सारे दर्शक इस समय यूएस में भी जुड़े हुए होते हैं। उसमें से एक हमारे दर्शक हैं श्री आशु सिंधु जी, एटलांटा जॉर्जिया से। वो जानना चाहते हैं कि अब जो एजुकेशन का जो सिनेरियो सिस्टम बनेगा कोविड-19 के बाद, अब जो जिस तरह से बनने वाला है, उसमें आप किस तरह के चेंजेस देख सकती हैं, और उसमें आपको क्या-क्या अब लगता है कि कौन-कौन से चीजों को इसमें और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करना? जी, अब जो हमारा सिनेरियो होगा वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा, उसमें काफ़ी चेंजेस होंगे। अब तक जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे थे, कॉलेज में बुलाते थे और क्लासरूम टीचिंग होती थी, बोर्ड चौक का इस्तेमाल होता था, बोर्ड्स का या हम स्मार्टफोन बोर्ड्स का इस्तेमाल करके टीचिंग करते थे, उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल टीचिंग को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये सिचुएशन कुछ समय तक तो चलेगी ही, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं वो इसके इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि ये माध्यम टीचिंग का बहुत अच्छा है और इसको अपनाने से शायद उन्हें कुछ और समय मिल जाएगा, कुछ और काम भी करने का, तो शायद इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो आपने बात मुझसे पूछी कि आने वाला सिनेरियो कैसा होगा टीचिंग का,
तो ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अभी जो ये हमारा ये पीरियड निकला है इसकी वजह से हम काफी पीछे हो गए हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमें अब जो ट्रेनिंग या टीचिंग अपने इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की करानी होगी वो स्किल बेस्ड टीचिंग करानी होगी। बच्चा जो है वो अपनी किसी भी चीज को जो वो पढ़ रहा है उसमें इतना ट्रेंड हो जाए कि वो जॉब्स के ऊपर डिपेंड ना करे, क्योंकि आने वाले समय में जैसा अभी बलविंदर सिंह जी ने भी बताया, डेफिनेटली इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें पहले मिला करती थी शायद आने वाले समय में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए कुछ समय के लिए। उसके बाद तो सिचुएशन ठीक होंगी ही धीरे धीरे, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी तब तक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी होगी और उसमें हमें अपनी ट्रेडिशनल चीजों को और अपने कोर्स करिकुलम में हमें ट्रेडिशनल टीचिंग को भी ऐड करना होगा। बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जिसमें हम योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नॉलेज को इंक्लूड कर सकते हैं, इंडियन मेडिसिन को इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो हैं वो हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस करनी होगी, जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट बन सके। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? सिर्फ जगह जगह नौकरी कर कर तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हमें पूरी तरह से अपने लिए कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ इस तरीके से अर्निंग के सोर्स पैदा करने होंगे जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सके। और उसके लिए जो सबसे पहला काम है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही करना होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करेगा। जैसा आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, 15 लाख स्कूल्स हमारी कंट्री में हैं। तो इन सब में बच्चों को क्या टीचिंग प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें अभी से बहुत ध्यान से अपना कोर्स करिकुलम बनाना होगा, तभी हम बच्चों को ज्यादा इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास प्रोफेसर डॉक्टर अलका अग्रवाल जी। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह साहब। सिंह साहब, एक क्वेश्चन मैं जरूर और लेना चाहूंगा, ये भी हमारे साउथ ईस्ट काउंटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट से पूछा गया है। कैन वी हैव द ऑनलाइन ऑडिट ऑफ कंपनीज? इफ यस, देन हाउ इफेक्टिव कैन इट बी? क्योंकि यूएस के वो पैटर्न को, ट्रेंड को कंपेयर कर रहे हैं और इंडियन सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से जरूर ये जानना चाह रहे हैं जो यूएस के दर्शक हैं। कैन वी हैव द ऑनलाइन ऑडिट ऑफ कंपनीज? अगर है तो कितना इफेक्टिव रहेगा आपके हिसाब से? Online audit, I named it when the COVID started as e-audit, the name given to me. I was the first person in the online discussion said, let us have an e-audit in situation when the lockdown started. E-audit is possible, but there are some checks and balances. I divide the e-audit, or you can say the online audit, which is a question, in two parts. One of an existing client, one of a new client. If the audit has to be of an existing client, you are aware of the systems prevalent in that organization. Suppose if we are visiting some of the factory in one of the audited year, we see all the production process, financial transaction process, how the transaction going from one department to other. We understand the things in the very first year of the audit. And when we are going to the same client second year, definitely we are not visiting all each and every department. Maybe something new happened, we are looking into that. More than a year pass, and automatically we are aware of the process. Even in the 1 to 2 years, we are able to know the processes. If we are to do an audit of an existing client, e-audit is very convenient without, I would say, insignificant risk as an auditor. With the possible of existing client, we have also issued some advisories in respect of e-audit, in respect of a cost audit of this year. We have already issued advisories on that. Yes, you can go for your audit, provided you also in your audit report explain that these were the 1 or 2 or 3 areas which I wanted to see personally sitting in the organization, which I cannot do. That somewhat reference you may give if you are uncomfortable. Regarding the discussion with the clients, yes, today we have all the discussion with the client in the online mode only, video conference mode only. Even when we sit in the client's office, we are shared the normal, we get the data only through the e-mode only. Even when we are sitting with the client in the same room next year,
The client is giving you the data only through e-mode only, email to email we are giving. The same thing can be done sitting at your home or sitting at your office and their local office, and you can continue the client through the online discussions whenever required. Online file sharing is possible. Yes, e-audit in case of existing client is very, very convenient. It is possible. If the client is new, definitely you need to see the transaction recording process. You may need to visit the factory to see the production process and other movement of goods. That may not be possible in case of new client. That you have to be exercise caution. Still, it is possible. You have to exercise caution. You can plan some questionnaires, so you can get the production process through some diagrams or other things, and whatever through queries you can do it. But you have to be caution on that. The conclusion is yes, e-audit is possible. थैंक यू सिंह साहब. मेरे साथ इस समय एमिनेंट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट शंकी जैन साहब. 10 न्यूज़ के माध्यम से मैं उनका जो फेवरेट पैशन है फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ वो सोशल सर्विस भी करते हैं. आज वो हमें जुड़ने का पहली बार मौका मिला है. जरूर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा उन्हीं की प्रस्तुति के द्वारा इसमें आप कैसे कर पा रहे हैं, क्या क्या कार्य करा हुआ है और आगे किस तरह से आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं. सर, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं कि हम जो भी लीगल एड्स हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, जितनी भी कानूनी जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं. सिर्फ जानकारी ही नहीं, जानकारी के साथ साथ हम उनको कानूनी सुविधाएं दे सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हैं तो जितना इजी लगता है उतना शायद नहीं है. आपने देखा भी होगा कि हम कहते हैं कि जो कानून रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ वेल्दी पर्सन्स के लिए थोड़ा इजी कन्वीनियंट रहता है. जो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं उनको बहुत सफ़र करना होता है अपना रिलीफ लेने के लिए, न्याय पाने के लिए उनको बहुत परेशान होना पड़ता है, और इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि हम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं कि वो उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ता है. और हम इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे 55 to 57 एडवोकेट्स हैं जो फ्री लीगल एड सर्विस चलाते हैं. who is not able to pay a single rupees for a legal proceeding service, we all are ready, we all are always available for them. हम सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं. हम यही नहीं कि सिर्फ उनसे जो चार्ज होता है, हमारे सपोर्टर्स भी काफ़ी हैं. कुछ NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स भी हैं हमारे को सपोर्ट करने के लिए. कुछ इंडस्ट्रीज के बिजनेसमैन भी हैं जो कहते हैं कि हम आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं, आप जितना भी हो रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए. जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री और कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी भी कह सके हैं, उन्होंने भी कहा है अपने आर्टिकल्स में, अपने अभिभाषणों में कहते हैं कि युवा वकीलों को मदद के लिए, कानूनी मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है, जिससे न्याय सभी को मिल सके, सबके लिए न्याय मिल सके, सदैव न्याय हो सके. तो हमारा भी यही उद्देश्य रहता है. हम भी उनके ही पद चिन्हों पे चलने के लिए, जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे ही हम फेज होते हैं, और उनसे प्रभावित होने के बावजूद हमारी कुछ टीम्स के जो सीनियर एडवोकेट्स हमारे को गाइड करते हैं, और हमारे जो कलीग्स हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करते हैं. और फ्री लीगल एड सर्विस का कॉन्सेप्ट हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं. थैंक यू जैन साहब, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छे निर्देश अनुसार आप पूरा कार्य कर पा रहे हैं. समय की भी पाबंदी है. मैं लौटूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अलका अग्रवाल जी, डायरेक्टर मेवाड़ इंस्टीट्यूट, मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे. मैम, शो को वाइंड अप करने से पहले आपकी तरफ से 10 न्यूज़ के माध्यम से आपके क्लोजिंग कमेंट्स. सर, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आज आयोजित किया, और मैं नीचे इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है उसको पढ़ रही हूँ. बहुत अच्छे कमेंट्स उसमें आ रहे हैं. ट्रूली इंफॉर्मेटिव सेशन, कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपने इसमें रखा है. इसके लिए आपका, ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. और एज ए एजुकेशनिस्ट मैं सर ये कहना चाहूँगी कि मेवाड़ इंस्टीट्यूट में जो भी कुछ हम आज कर रहे हैं, चाहे वो कोविड-19 के टाइम पर है या उससे पहले कर रहे थे या आने वाले समय में भी हम करेंगे, मुझे लगता है और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए. एक तो हम अपने यहाँ सारी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ आता है वो अच्छे तरीके से सीख पाता है कि मुझे आगे भविष्य में किस तरीके का नागरिक बनना है. सिर्फ एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मेवाड़ में नहीं प्रोवाइड की जाती, एक अच्छा नागरिक बनाने की तरफ ध्यान दिया जाता है, और उसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं. और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आएगी, क्योंकि अभी मार्च से अभी तक भी 8.5% से लेकर 23% तक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है. जो पहले 8.4 था वो अब
23% हो गया है। तो आने वाले समय में ये स्थिति आएगी, उसके लिए हमें अभी से बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जो भी हम बच्चों को दे रहे हैं वो इस लेवल का हो कि बच्चा अपने आप कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करे और अपना काम जो है वो भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से चलाए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने यहाँ आमंत्रित किया और एक बहुत अच्छा सेशन आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। प्रेसिडेंट सीएमए बलविंदर सिंह साहब, बिफोर वी वाइंड अप द शो, फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम योर एंड दर्शकों के लिए 10 न्यूज़ के माध्यम से। Comment on the financial and cost management matter only. One message to the students. Students are worried today what is going to happen in examination between maybe my institute student, maybe the other institution students. So need to go for the restraint, continue to study. Some via media for the examination and other things will come. Regarding online education, regarding studies, the education is maybe in the schools, the colleges and universities moving online. Till the time situation comes normal, online education will continue. Regarding online examinations, definitely it may be the scenario in my institute or maybe in other institutes if the COVID doesn't come in control in the next very short period. And regarding the members of the CMA profession, those who are in practice is definitely thinking of how to do the audit this time, which I have explained in one case that e-audit is possible. And definitely some of the entities which have suffered has led to the reduction of the business of professions also. But the good time will come. Those my CMA friends in the industry, they are doing excellent work despite social distancing. They are working from home and seeing that how they can contribute to the best so that the production comes to the normal again. With this, I'm thankful for the invitation. Thank you, President CMA Balvinder Singh साहब. And before we really actually wind up the show, शैंकी जैन साहब, इस शो के माध्यम से दर्शकों के लिए आपकी तरफ से फाइनल मन की प्रस्तुति और क्लोजिंग। सर, मन की प्रस्तुति मेरे और मेरी पूरी टीम के साथ, जैसे कि सीएमए प्रेसिडेंट सीएमए बलविंदर सिंह सर ने कहा है, डॉक्टर अलका अग्रवाल मैडम ने बताया कि सीएमए इंस्टीट्यूट देश की अर्थव्यवस्था को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, मेवाड़ इंस्टीट्यूट डे नाइट 24 आवर्स सभी की हेल्प के लिए तैयार रहता है और वो एजुकेशन सेक्टर में कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ यही बात कह के वाइंड अप करना चाहेंगे कि मेरी और मेरी जो टीम है, लीगल फ्रेटर्निटी टीम है, उनकी भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सोच संयमशील का हर घर में व्यवहार हो, देश का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, ये खिलता हुआ भारत चमन गुलजार हो। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े हुए थे एडवोकेट शैंकी जैन, प्रोफेसर डॉक्टर अलका अग्रवाल, डायरेक्टर मेवाड़ इंस्टीट्यूट और प्रेसिडेंट सीएमए बलविंदर सिंह, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 10 न्यूज़ को समय देने के लिए आप सबका पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।